السلام علیکم۔ بسم ناظرین، اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی بھی ایسی چیزوں سے نہیں نوازتا جو تمہارے لیے آگے پریشانیاں اور مشکلات پیدا کر سکیں، کیونکہ وہ تو اللہ پاک ہے نا۔ وہ تمہیں سکون کی جگہ تکلیفیں تو نہیں دے گا، وہ جانتا ہے کب کیسے کیا اور کس کو دینا ہے۔ بس تم یقین اور صبر رکھو اس پر، دیر سے ہی صحیح پر وہ معجزے کرنے میں بالکل دیری نہیں کرتا۔ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے بھلا کہ حساب نہیں ہوگا اور وہ بخشا جائے گا؟ یاد رہے حساب ہوگا، ایک ایک آنکھ کا، آنسو کا، بے حسی کا، الزام تراش کا۔ وہ صرف عبادت والوں کا نہیں، ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسوں سے نکل کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہش سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے مول سے دیکھ پاؤ گے۔ تم کہتے ہو کہ درد برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اللہ پاک کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ پاک میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ پاک جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو اچھی صورت دے کر تو کسی کو اچھا دل دے کر۔ چھوڑ دو خود کو ڈھونڈنا، چھوڑ دو لوگوں کے پیچھے بھاگنا۔ تم کو بھلے خبر نہیں تمہاری، مگر اللہ پاک خوب جانتا ہے تم کہاں ہو۔ سارے دعوے جھوٹے ہیں، بس وہی پہچانتا ہے تم کون ہو، کیا ہو، کیوں ہو۔ پھر اللہ پاک کو ناراض کر رکھا ہے، کیوں خود سے بھی خفا ہو۔ اللہ پاک زندگی کے سب سے زیادہ نا امید لمحوں کو سب سے بہترین لمحوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ نماز اور قرآن کے ذکر کی طرف بھی خود نہیں جاتے، آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے شکر کرو، ہر حاصل اور لا حاصل پر میں شکر کرنے والوں کو ان کی گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ حسد کسی سے نہ کرو، اللہ پاک جسے دے رہا ہے اپنے خزانوں سے دے رہا ہے، تم سے چھین کر نہیں دے رہا۔ تو اپنے دل میں یہ پکا یقین بٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس میں ہی بہتری تھی، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ماض کا ہر غم مٹا دے گا، ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب وہ تمہیں بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو تمہاری اور میری سوچ سے بہت دور کی بات ہے۔ پھر جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری دعا کا، تمہارے قرب کا۔ تو پھر بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ اور دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن سب تمہارا رب، تمہارا اللہ پاک نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے۔ یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی وہ وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سبھی کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اس لیے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ پاک تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ کبھی اللہ پاک کسی کو فوراً ملا دیتا ہے تو مانگنے کے بعد، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا دیا ان کی ماں سے۔ کبھی سالوں لگ جاتے ہیں دعا کی قبولیت میں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے۔ جو دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی اس دنیا کے لیے اس کا اجر اللہ پاک آخرت میں دے گا۔ اپنے بندے کو کبھی شک نہ کرو کہ اللہ پاک کیا کر سکتا ہے،
अल्लाह पाक पलक झपकने से पहले चीजों को बदल सकता है, इसलिए परेशान ना हो। वो आंसुओं को खुशियों में तब्दील कर सकता है। वो अचानक बंद दरवाजे खोल सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि खुलेगा। आपका काम सिर्फ अल्लाह पाक पर भरोसा करना है और सब्र करना है। हम फानी मोहब्बतों के पीछे भागकर जब खाली हाथ रह जाते हैं तो तब याद आता है बस रब और उसकी मोहब्बत। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, जब मैं अपने रब के साथ होता हूँ तो हर चीज इबादत करती दिखाई देती है। अल्लाह पाक से मोहब्बत हो तो जिंदगी कुर्बान करने का जज्बा आ ही जाता है। हम तो मोहब्बत का दावा करते हैं, न नींद कुर्बान करते हैं कि उस रब के आगे झुक जाएं, न वक्त निकालते हैं कि कुरान पाक समझ लें, ना अखलाक बदलते हैं कि रब राजी हो जाए। हमारी ये कैसी मोहब्बत। हाँ, मोहब्बत करनी है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरह देखे, सब कुर्बान करने के लिए तैयार थे। कभी अहलो अयाल, कभी घर, कभी मोहब्बतें, सब अल्लाह पाक की खातिर कुर्बान करना जानते हैं। बदले में क्या मिला? अल्लाह पाक की तरफ सलामती की बसारत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह पाक की दोस्ती। हाँ, कुर्बानी से है तो कुर्ब मिलता है। बंद करता है अकल की आंखें इश्क जब वारदात करता है। मोहब्बत में इनकार नहीं होता। महबूब कहे कि सजदा वाजिब है तो फिर करबला का मैदान हो या आदम के दीदार का सजदा किया जाता है। अगर महबूब सब्र करे तो फिर शदीद बीमारी का आलम हो या फिर बेटे की जुदाई का सदमा सब्र किया जाता है। और अगर सामने आग हो और इश्क साबित कदमी का ख्वाहिशमंद हो तो आग में भी बिना खौफ और खतरा कूद दिया जाता है। और अगर महबूब दौरान नमाज किबला बदलने का हुक्म दे तो सवाल के बगैर कि क्यों बदलना है, बाजमात किबला बदल दिया जाता है, क्योंकि मोहब्बत में इनकार नहीं होता। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं अक्सर और बतर वही हमारे टूटने और बिखरने का सबब बनते हैं। लोग हमारे हाथों में उम्मीदों की डोरी थमाकर पल में बदल जाते हैं। लोग हमें खुद की जात पर अंधा एतमाद दिलाकर हमारी वफाओं पर बेयकीनी की मुहर लगा देते हैं। हालांकि हमारी उन लोगों से मोहब्बत और अकीदत की कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर यह सब क्यों? तब हमारा जवाब सिर्फ यह होता है कि आपका टूटना इस वजह से जरूरी था कि आपको मालूम हो सके कि अल्लाह पाक के सिवा आपका कोई नहीं। वही आपको आपसे बढ़कर मोहब्बत करता है, वही आपका सच्चा दोस्त है, वही खालिक है, वही मालिक है। अगर आप अल्लाह पाक से बढ़कर किसी से भी बेहतरी की उम्मीद लगाते हैं तो उसी के हाथों तोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक से बड़ा कोई नहीं, उससे बड़ी जात किसी की नहीं, उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। तो जब हम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह पाक के बराबर किसी को लाते हैं मोहब्बत में तो वो फिर हमें बताता है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। ये इंसान क्या चीज, क्योंकि कुरान मजीद में इरशाद वारी ताला है, जिन लोगों ने अल्लाह पाक के सिवा और कारसाज मुकर्रर कर रखी हैं उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी ये घर बना लेते हैं। अल्लाह पाक की याद ही में दिल चैन पाते हैं। अल्लाह पाक की कुर्ब का असल जरिया रूहानियत है और रूहानियत का असल जौहर अल्लाह पाक का जिक्र है। रूहानियत असल में रूह का अपने खालिक और मालिक से वाबस्ता हो जाने का नाम है और जिक्र अल्लाह पाक उस वाबस्तागी का उम्दा इजहार है। सही बुखारी के एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह पाक का जिक्र करने और करने वालों की मिसाल ऐसी है जैसे एक जिंदा और एक मुर्दा। जैसे मारूफ तसनीफ में लिखते हैं कि किस जिक्र से दिल को जिंदगी मिलती है। मैंने सुना है कि दिल के लिए जिक्र ऐसे ही हैं जैसे मछली के लिए पानी। अगर मछली पानी से जुदा हो जाए तो उसकी कैसी कैफियत हो जाती है। बिल्कुल दिल का जिक्र अल्लाह पाक के बगैर यही हाल होता है। ऐ अल्लाह पाक, यकीनन मैं तेरी बंदी हूँ और तेरे ही बंदे और तेरी ही कनीज की बेटी हूँ। मेरी पेशानी तेरी ही हाथ में है, मुझ में तेरा ही हुक्म जारी और सारी है। मेरे बारे में तेरा फैसला मबन पर इंसाफ है। मैं तेरे हर उस खास नाम के जरिए से तुझसे दरख्वास्त करती हूँ जो तूने खुद अपना नाम रखा है।
यह उसे अपनी किताब में नाजिल फरमाया है या अपनी मखलूक में से किसी को सिखाया है, या तूने उसे इल्म गैब में अपने पास खास किया है कि तू कुरान मजीद मेरे दिल की बहार बना दे और मेरे सीने का नूर, मेरे गमों का इलाज और मेरी फिक्र का जरिया बना दे। तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई नहीं ले सकता। अगर भरोसा है रब पर तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा नहीं हो सकता। मौत इंसान के जिस्म को आती है, किरदार को नहीं, इसलिए अपने किरदार को बेहतर बनाएं ताकि मरने के बाद भी याद रहे। क्यों मांगते हो औरों के दरबार से, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं होता तेरे परवरदिगार से। कभी किसी को नीचे नजर से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो ख्वाहिश है ये तुम्हारी काबिलियत नहीं, बल्कि तुम पर अल्लाह पाक का करम। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मुझे देने वालों की कतार में ही रखना, मेरे मालिक तेरे दर के सिवा कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। ऐ हमारे रब तू हमें हिदायत दे, हमें रहमत अता फरमा, बिला सुबह तू ही सब कुछ अता करने वाला है। अल्लाह पाक के हर फैसले पर राजी रहो, क्योंकि अल्लाह पाक अपने फैसलों को खूब जानता है। जब अर्श वालों की वर्जी होती है तो फर्श वालों की तमाम साज़ें बेकार हो जाती हैं। हमारी रोटी हमें ही दे या रब, तेरे बंदे बड़ा ख्वार करती हैं। रिज्क और मौत का खौफ ना करो, ये सिर्फ अल्लाह पाक के पास है। बेशक न कोई तुम्हारा रिज्क छीन सकता है और ना ही मौत दे सकता है सिवाय अल्लाह पाक के। नेकी की एक सूरत किसी को मुस्कुराकर देखना भी है, नरमी से बात करना भी है, बुजुर्गों का एहतराम करना भी है, किसी के काम आना भी है। फिर पता नहीं क्यों हम नेकी को इतना मुश्किल कर बैठी हैं। जब तुम्हारी मुश्किल हाथ से ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह पाक तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। दुनिया में हर चीज का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे का फायदा मत उठाओ। मुझे तेरे बंदों से कोई गिला नहीं है, मेरे अल्लाह पाक बस मुझे इतना अच्छा बना दे कि किसी को कोई गिला ना हो। आजमाइश कभी सजा नहीं होती, बल्कि ये रब्बे कायनात की तरफ से उसकी मेहरबानी और इनायत है तुम पर कि तुम उसके यहाँ पसंद किए जाते हो। तुम्हें वो अपने अच्छे और नेक बंदों में शुमार करता है, क्योंकि आजमाइश उसकी ही की जाती है जो ईमान वाला हो, जो उसके नजदीक सब्र वाला हो, जो तबक वाला हो। तो फिर इन हालात में शिकवे शिकायतों की बजाय सब्र तहल से उसकी हिकमतों और मसलियतों पर गौर और फिक्र करो, ताकि तुम जान सको कि यह आजमाइश तो महज एक बहाना है उस अल्लाह पाक से राब्ते बढ़ाने का, अपने ईमान को मजीद पुख्ता करने का और सबसे बढ़कर बेहतरीन अजर पाने का। क्योंकि वो खुद फरमाता है कि अल्लाह पाक साबरीन के साथ है और सब्र करने वालों को ही अल्लाह पाक महबूब रखता है। सब्र करने वालों को ही उनका पूरा पूरा बेशुमार अजर दिया जाएगा। और याद रखो कि बेईमान और बहके हुओं को वो उनके हाल पर छोड़ देता है। वो अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी को आजमाइश बनाकर खुद पर मुसल्लत कर लेते हैं और फिर इस भंवर से कभी नहीं निकल पाते। मेरे लिए अल्लाह पाक ही काफी है। लाखों करोड़ों लोगों में से अगर उसने तुम्हें दुआ की तौफीक दी है तो फिर इस बात पर भी यकीन रखो कि वो तुम्हें ऐसे नवाजेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। जैसे फिजा के बाद बाहर उजड़े हुए बाग को फिर से लहलहाते हुए फूलों से भर देती है, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह पाक तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियों की महक भर देगा। इसलिए कि जो 7 जमीन और 7 आसमानों में रहने वाली हर शय का निजाम संभालते हुए हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम तकलीफ में मुब्तला हो और वो तुम्हारे दर्द की दवा ना करे? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपने पास हुए दिल को उसके रूबरू लेकर जाओ और वो इन किरचियों को मोहब्बत से ना समेटे? क्या उसके लिए तुम्हारी दुआओं पर कुन कहना ज्यादा मुश्किल है कि जमीन और आसमान का बनाना? इसलिए जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ थोड़ा सा इंतजार और सही। जहाँ इतनी लंबी मसाफत तय करके आए हो वहाँ थोड़े कदम और बढ़ा लो, मंजिल तुम्हारे सामने है। अब तो सिला मिलने का वक्त है, तो फिर क्यों हिम्मत हारनी है? और याद रखो कि बदतर से गुजार कर ही बेहतरीन की तरफ लाया जाता है और बेशक उसका वादा है
कि सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। इसलिए ना उम्मीद और मायूस मत होना, बस सब्र का दामन थामे रखना और अल्लाह पाक के आगे हाथ फैलाए रखना। अल्लाह पाक के सिवा किसी को अपना मददगार बनाना। जो नेकी करती हैं वो कभी ना कभी लौट कर आती हैं, जो बुराई करती हैं वो भी कभी ना कभी लौटकर हमारी तरफ ही आती हैं। तो अपनी नेकी पर यकीन रखो और फिर अल्लाह पाक पर यकीन रखो, वो जरूर देगा, वो अजर देगा इंशाअल्लाह। उसने शोर मचाया, मोहल्ले के लोग आ गए और चोर को पकड़ लिया। जब देखा तो मालूम हुआ कि वो चोर पड़ोसी है। उस वक्त औरत को एहसास हुआ कि चोर के आने में असल रुकावट दरवाजा नहीं, मेरा शौहर था। इस चौखट से ज्यादा मजबूत वो चौखट थी। शौहर में लाख ऐब हों, लेकिन हकीकत यही है कि मजबूत चौखट सिर्फ शौहर है। तुम किसी को चाहो और वो तुम्हें ठुकरा दे तो यह उसकी बदनसीबी है, और इसके बाद तुम उसको जबरदस्ती अपनाना चाहो तो यह तुम्हारे नफ्स की जिल्लत है। बच्चे को गुस्से में हल्का सा थप्पड़ लगा दो तो वो रो पड़ेगा, मगर मजाक में मारे हुए जोर के थप्पड़ से भी हंसता रहेगा। नफ्स दर्द जिस्मानी दर्द से ज्यादा शदीद होता है और जुबान का लगा हुआ जख्म कुल्हाड़ी के जख्म से ज्यादा दर्दनाक होता है। हर वक्त तंजियां लहजा रखने वाला अपना वकार खुआ बैठता है। जिस छाव से इज्जत नफ्स जख्मी हो उस छाव से धूप भी बेहतर है। यह हमारी आंखें नहीं बल्कि दूसरे की आंखें हैं जो हमें बर्बाद करती हैं। अगर सिवाय मेरे दुनिया के तमाम लोग अंधे हों तो मैं कभी उम्दा लिबास और खुशनुमा सामान की परवाह न करती। मेरे पास वक्त नहीं उन लोगों से नफरत करने का जो मुझसे नफरत करती हैं, क्योंकि मैं मसरूफ रहती हूँ उन लोगों में जो मुझसे मोहब्बत करती हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहूं तो सोना बना लो और चाहूं तो सोने में गुजार दो। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर सना छीन लेती है। क्लास में जब अगले बच्चे को मार पड़ती थी तो हम सोचते थे कि अब हमारी बारी है। जनाजा देखकर हम ये क्यों नहीं सोचते, रात की खामोशी बताती है कि तारों की हकीकत अंधेरे और तन्हाई से बाज होती है, और यही मामला इंसान का भी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, फिर भी बंद दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ते थे और रब ने एक एक करके सारे दरवाजे खोल दिए। कभी अगर लगे कि तुम्हारे लिए भी दरवाजे बंद हैं तो जान लो कि तुम्हारा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का रब एक ही है। आज के दौर में लोग अपनाते एक तहजीब को हैं, लेकिन मजा दूसरी तहजीब का लेना चाहते हैं। मॉडर्न औरत पर्दा नहीं करती और चाहती यह है कि उसकी तरफ कोई बुरी नजर न डाले। लोग अपनी बेटी का रिश्ता उसे देती हैं जो महज अमीर कबीर हो और चाहते हैं निकाह पढ़वा ले। कोई फकीर हो, सारी जिंदगी हराम कमाई से माल जमा करती हैं और फिर महल बनाकर लिखते हैं हाजा मिन फजली रब्बी। माँ बाप को सताकर छड़ पिलाकर चुप करवा देती हैं और गाड़ी पर लिखते हैं यह सब मेरे माँ बाप की दुआ है। तालीम अंग्रेजी हासिल करना चाहते हैं, नौकरी यूरोप की करना चाहते हैं, सैर पेरिस की करना चाहते हैं और देखना बुर्ज खलीफा चाहते हैं, लेकिन दफन जन्नतुल बकी में होना चाहते हैं। जो दिल अल्लाह पाक की जात से सुकून और इत्मीनान के तलबगार होती हैं वो दिल जल्द सुकून और करार पा जाते हैं, और जो दिल महज खाक के पुतलों से दिली वाबस्तागी और उनसियात को ही वाजिब सुकून समझें, फिर उन दिलों को उनके जैसे ही लोगों के हवाले कर दिया जाता है कि सुकून पाओ इन दुनिया वालों से और रहो इनके ही तलबगार, ताकि तुम्हें पता चले कि असल तलबगार किसका होना है और सुकून की भी किस तरह से मांगनी है। जरा सोचो, जो इंसान खुद अपने सुकून के लिए किसी दूसरे दर का मुतालबा हो वो इंसान तुम्हें कैसे सुकून और राहत पहुंचा सकता है। जो खुद से सांस लेने पर भी कुदरत नहीं रखता वो किसी की सांसों की रवानी कैसे हो सकता है। जो है ही फानी वो वका के दावे कैसे कर सकता है। हमेशा हर चीज हर बात अरपाक को बताओ, उसे दोस्तों की तरह बात करो, फिर जब भी दिल तड़पने लगे तो उसकी तरफ भाग जाओ। जब सब कुछ नामुमकिन लगे तब उससे मुमकिन होने की दुआ करो। जब सबकी हदों को तोड़कर सब्र की हदों को तोड़कर अश्क आंखों के रास्ते रुखसार पर बहने लगी तो दोनों हाथ उठाओ और इल्तिजा करो। जब कभी जिंदगी से हार जाओ और जीने की चादर दम तोड़ दे
तो आंखें बंद करके उसकी मौजूदगी को महसूस करो। फिर हाथ धड़कते हुए दिल पर रखो। इन धड़कनों की सरगोशों में लहू की मानिंद दौड़ रहा है, जैसे वो पूरी रूह पर काबिज है। फिर सुकून भी मिलेगा, जिंदगी आंखों से नजर आएगी और होठों से मुस्कुराओगे। उसे महसूस करने में इतना सुकून है तो सोचो जब वो रूबरू आएगा तो क्या कैफियत होगी। तुम्हारी अल्लाह को सब कुछ मालूम है, वो सब जानने वाला है। तुम्हें लगता है कि जैसे तुम्हें कोई समझ नहीं सकता, कोई तुम्हारी तड़प को देख नहीं सकता, मगर अल्लाह को छोड़ोगे तो कोई चीज हाथ नहीं आएगी। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सब्र और सही। फिर देखो जब अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वो भी तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। गम न करो, अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है। एक हार पर हर उस फतेह को भूल गए हो जिससे अल्लाह पाक ने तुम्हें हमकिनार किया है। उसकी रहमतों को याद करो और जहनसी कर लो कि हमारा रब हर शय पर कामिल है। जानते हो अल्लाह पाक तुम्हें बेबसी के मकाम पर क्यों लाया है, ताकि तुम अल्लाह पाक से रुजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम दुआओं पर यकीन करना सीख जाओगे तो जो चीजें तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही हैं और जो चीजें नसीब में नहीं हैं वो भी तुम यकीन से पालोगे। सब्र बहुत मुश्किल है लेकिन इसका सिला बेहद खूबसूरत है। अभी न सही मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा उनसे खाली नहीं जाएगा। वो खूब जानता है कौन किस हाल में है, वो जानता है कौन बेबस और कौन सब्र की आखिरी इंतहा पर है। और याद रखो जितना मुश्किल वक्त होगा तुम उतना उसको करीब कर पाओगे। बस हिम्मत न हारना, वो क्या नहीं कर सकता बताओ तुम खुद। वो पालने वाला बड़ा ही करीम है। सब होगा, हर दुआ सुनी जाएगी और कबूल की जाएगी। तुम बस ये उम्मीद रखना और सब्र से इंतजार करना। उस रब की मसलियत पहचानते हो, तबक अपना ऐसा बनाओ कि कुछ खो के भी ना पछताओ। सब्र बनाओ ऐसा कि रूह चीरने वाली आजमाइश में भी मुस्कुराओ। एक खेल है अनगिनत कुर्बानियों का, हर कोई कहाँ देता है। अल्लाह पाक किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। देर हो रही है तो जरूर कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। अगर कर रहे हो सब्र तो जरूर उसका अजर मिलने वाला है। होकर मायूस तुम अगर फिर से जीने में आए हो तो जरूर तुम्हें उसका सहारा मिलने वाला है। अगर मांगा है तुमने एक कतरा तो यकीनन तुम्हें पूरा समंदर मिलने वाला है। चल रहे हो बिना मंजिल के जिस रास्ते में तुम सुकून रखो तुम्हें उसकी रहमतों का इशारा मिलने वाला है। जब अचानक लेटे लेटे माजी की तलक याद ने दिल दिमाग बोझल कर दिए थे और तुमने बेचैन होकर करवट बदली थी। जब रात को सोते वक्त आंसू तुम्हारी आंखों से फिसल रहे थे और तुम अनजान थे मगर अल्लाह पाक बेखबर नहीं था। तुम्हें यह वक्त भले ही मुश्किल लग रहा है मगर तुम्हारे सब मुश्किलात का हल बस उसके एक कुन में रखा है। सब्र करना जितना मुश्किल लग रहा है देखना उसका अजर भी उतना ही खूबसूरत होगा। बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। तुम कहते हो कि दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अल्लाह पाक कहता है कि वो किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तुम कहते हो या अल्लाह पाक मैं ही क्यों? वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह पाक जिनसे मोहब्बत करता है उनको ही आजमाइश में डालता है। तुम्हारा रब तुम्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुमने उसकी रजा के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करते हुए अपने सब्र से उसे राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सारी बातों के पीछे बहुत सी हिकमतें और मसलियत हैं, इसलिए परेशान होना छोड़ दो। अल्लाह पाक से जुड़े रहो, अल्लाह पाक से मदद मांगते रहो और सब्र से अल्लाह पाक के फैसलों का इंतजार करो। सब्र और बंदे की तरफ कभी जाया नहीं जाती और इस बात पर भी यकीन रखो कि अल्लाह पाक का वादा सच्चा है। बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। दुआएं जितना सब्र लेती हैं वो उतनी ही ज्यादा रंग लाती हैं। तो अपने उठे हुए हाथों को कभी मायूसी की वजह से झुकने ना देना, क्योंकि अल्लाह पाक कभी कभी सब्र की आखिरी हद आजमाता है और उसके बाद सिर्फ एक ही मरहला आता है और वो है उसका कुन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की बुलंदी 4 बातों में हुक्म इलाही पर सब्र
करना, तकदीर पर राजी रहना, इखलास के साथ अल्लाह पाक पर तवक्कुल करना और परवरदिगार का फरमा बरदार रहना। कोई जरा सी देर पर हो गया मायूस और किसी के हिस्से में बार बार सर को झुकाना लिख दिया गया, किसी को 4 कदम के फासले पर मिल गया और किसी के नसीब में लंबा सफर लिख दिया गया। राहें जुदा हो जाने से मुकद्दर जुदा नहीं होते, और जो इस बात का यकीन रखते हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए ऐसे वसीले बनाता है जो किसी की भी नजर से गुजरे नहीं होते, जो शख्स सब्र की चादर ओढ़ लेता है वो इज्जत और बुजुर्ग पाता है। रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज को दूर कर दे उस पर सब्र करो। सूर यूसुफ हमें बता रही है कि सब्र करने वाले खूबसूरत इता पाएंगे। जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो तो समझ जाओ कि तुम्हारे मामले का फैसला और अल्लाह पाक की जानिब से मदद का वक्त यकीनन बहुत करीब आ रहा है। बस तुम अल्लाह पाक की जानिब से आने वाले हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो। अल्लाह पाक किसी भी हाल में तुम्हें दरबदर नहीं होने देगा। जब साथ हो अल्लाह पाक का तो कैसी मुश्किल, कैसा गम। जब यकीन हो अल्लाह पाक पर तो कैसे सिकवे, कैसे सवालात। वो अल्लाह पाक जो रात के अंधेरे में भी एक गहरे पत्थर के नीचे चलती हुई छोटी सी चींटी के बारे में भी बाखबर है, तो तुम्हें क्या लगता है कि यह जो तुम्हारे दिल में एक ख्वाहिश है वो रब इससे वाकिफ नहीं? जब वो तुम्हें सब्र की इंतहा को ले आए तो यकीन रखो कि आजमाए सब खत्म होने वाली है, और फिर हर उस चीज से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर झोली फैलाया करते थे। जब तुम नामुमकिन हालात में भी अल्लाह पाक का डर नहीं छोड़ते, जब वो तुम्हें अपने मोजिज़ों से नवाजता है, सब्र में सिकवा नहीं होता, बस खामोशी होती है, और उस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह पाक को सुनाई देता है। तुमसे तुम्हारा नसीब अब बहुत जल्द बदलने को है। तुम्हारी बेरंग जिंदगी में अब वो रंग भरने वाला है। अब तुम्हारा घर भी खुशियों के फूलों से महक जाएगा। यकीन करो तुम अपनी दुआओं की कबूलियत जल्द देखोगे। जब आँख कुछ भी ना बदल सके तो अपनी दुआओं में इजाफा कर दी, क्योंकि उस जात के सिवा कोई भी आपको कुछ भी नहीं दे सकता। एक मंसूबा तुम बनाते हो और एक मंसूबा वो बनाता है। जब तुम उसकी मंसूबा बंदी पर यकीन नहीं रखते तो वो तुम्हारे मंसूबे में भी थका देता है। इसलिए नहीं कि तुम्हें तकलीफ, बल्कि इसलिए कि तुम जान सको कि उससे ज्यादा दाना और हिकमत वाला मंसूबा साज कोई नहीं। कोई बात नहीं अगर तुम आज बिल्कुल टूटे हुए हो, दिल से कस्ता हो, कोई गुनाह नहीं। हाँ, बस मायूस मत होना, वो रब तुम्हें आजमा रहा है, तुम्हें सजा नहीं दे रहा। उसने तुम्हारी मुश्किल के साथ आसानी भी रखी है। तुम्हारे मसाइल का हल तुम्हें अभी नजर नहीं आ रहा, मगर ऐसा नहीं है कि कोई हल मौजूद ही नहीं। हर चीज अपने वक्त पर सुलझ जाएगी, हर जख्म से वो शिफा दे देगा। बस तुम उसकी जात से ताल्लुक बनाए रखना, हर काम आसान वही कर देगा। वक्त वक्त की बात होती है, अगर बुरा वक्त हो तो सब्र कर लीजिए, वक्त अगर अच्छा हो तो शुक्र कीजिए। चीजें खराब होती हैं पहले से ज्यादा बेहतर होने के लिए। इन आजमाइश के बाद अल्लाह पाक का मौजज़ा है तुम्हारे लिए। जब तुम सब्र करोगे तो रास्ते खुद तुम्हारा रब बनाएगा। उसने कहा है वो सब्र करने वालों के साथ है, तो रब साथ है, तो जब रब साथ है तो उससे ज्यादा खुशी की बात, हौसले की बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। एक बार जब यह इश्क अल्लाह पाक के सामने बहने लगे और यह हाथ मांगने के लिए अल्लाह पाक के आगे उठने लगी, तो फिर अल्लाह पाक कभी इन हाथों को लोगों के आगे फैलाने नहीं देता और ना इन आंखों को किसी के सामने तर होने देता है। रब के फैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज्यादा वक्त गुजरने पर तकलीफ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज्यादा तुम सब्र से काम लोगे उसका फल उतना ही दुगना करके दिया जाएगा और इस सारी तलखियों का मतावा कर देगा जिसके कड़वे घूंट तुम हंसकर पी गए थे। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना। यह चीजें तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे अल्लाह पाक के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पाक फरमाता है, कुन फयाकुन हो जा, तो वो हो जाता है। अल्लाह पाक के बारे में जैसा गुमान करोगे वैसा पाओगे।
तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता। तहज्जुद लाडली इबादत है और अल्लाह पाक के लाडलों को ही नसीब होती है। तहज्जुद में मांगी गई दुआ रद्द हो जाए, यह तो सरासर नामुमकिन सी बात है। तुम उसे मनाने के लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो ना माने, यह तो नामुमकिन सी बात है। अगर अल्लाह पाक तुम्हें वहां तक नहीं लेकर गया जहां तुम जाना चाहते थे, तो यकीन रखो बेहतर होगी वो जगह जहां वो तुम्हें अपनी मर्जी से ले जाएगा। नामुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मुकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें नवाज दिया जाए। जो अल्लाह पाक को दुनिया से पहले रखता है, अल्लाह पाक भी फिर उसे दुनिया से पहले रखता है। हम कहते हैं कि अल्लाह पाक तो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो वो हमें आजमाइश ही क्यों देता है। हम कहते हैं कि अल्लाह पाक तो जानता है कि हमें किस चीज की ख्वाहिश है, तो इंतजार ही क्यों करवाता है, बिन मांगे क्यों अता नहीं करता। जरा सोचिए आप, अगर यह मामूली सी आजमाइश भी नहीं आती आप पर, तो अल्लाह पाक से कैसे जुड़ पाते। अगर दुआ नहीं होती तो अल्लाह पाक से हम कलाम कैसे हो पाते। अल्लाह पाक मुख्तलिफ जरियों से आजमाता है, कभी लेकर तो कभी देकर। लेकिन याद रखिएगा, आजमाता उन्हीं को है जिन्हें अपने कुर्ब से नवाजना चाहता है। पता है इंसान कब बेसुकून होता है, जब वो अपने सुकून का मरकज इंसान को बना लेता है, जब वो अपनी खुशियों की उम्मीदें इंसान से लगा लेता है। क्योंकि सुकून का मरकज कभी भी ना तो इंसान हो सकता है और ना ही यह दुनिया। जिंदगी कभी कभार तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। पहला यह कि हकीकत से भागते रहो और दूसरा यह कि अल्लाह पाक की रजा में राजी हो जाना। दुनिया की मोहब्बत पर यकीन कर सकते हैं। हमें यह जिंदगी सिर्फ इसलिए मिली है कि हम अल्लाह पाक को राजी करें, अपनी मंजिल सिर्फ अल्लाह पाक को बनाएं, जिसे ख्वाहिश पूरी करने में लज्जत है। अल्लाह पाक के लिए अपनी ख्वाहिश कुर्बान करने की लज्जत उससे हजारों गुना बढ़कर है। जिसे अपनी मनपसंद चीज पा लेने में मजा है, अल्लाह पाक के लिए उस मनपसंद चीज को कुर्बान कर देना ही असल जीत है। जब इंसान यह जान लेता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह पाक की रजा थी, फिर दिल मुतमईन सा हो जाता है। फिर कोई चीज पहले की तरह तकलीफ नहीं देती, बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। यह दुनिया एक इम्तिहान है, यहाँ हम अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते। हालात कभी हमारी तबीयत के मुताबिक होंगे तो कभी खिलाफ, तो हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक को तुम अपनी चाहत बना लो, वो फिर तुम्हें हर चाहत से लातलब कर देगा। तुम उस पर अपना यकीन पुख्ता कर लो, वो फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ने देगा। और सोचो, जिस शख्स ने अल्लाह पाक के हर फैसले पर सर झुकाना सीख लिया और सब्र कर लिया, उसे फिर दुनिया की कौन सी चीज तोड़ सकती है। बस लोगों का डर खत्म हो जाता है और उनकी बातें दुख नहीं देती, क्योंकि तब दिल यह सोच कर मुतमईन हो चुका होता है कि अल्लाह पाक काफी है। दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती, बस कभी कभार अल्लाह पाक हमारा सब्र आजमाता है कि मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। और कुछ दुआएं तो होती ही इतनी प्यारी हैं कि अल्लाह पाक को अपने बंदे पर इतना प्यार आता है। अल्लाह पाक जब तुम्हें अपने करीब लाने का इरादा बांध लेता है, तब वो सबसे पहले तुम्हारा दिल अपनी जानिब मोड़ता है। वो तुम्हारे दिल को तब तक तोड़ता है जब तक तुम्हारा दिल उससे जुड़ नहीं जाता, और फिर जब तुम टूट कर उससे जुड़ जाते हो तो वो तुम्हें ऐसे सुकून से भर देता है जो तुम्हारी रूह को ठंडा कर देता है। जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजीज है और जाहिल की पहचान तकब्बुल है। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। जो लोग जितने मुकम्मल नजर आते हैं उतने ही मुंतजर होते हैं मौजूदों के, लेकिन पता है वो मुकम्मल और मुतमईन क्यों नजर आती हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह पाक से अपने ताल्लुक चट्टानों की तरह मजबूत रखे होते हैं। उन्हें यकीन होता है वो दुआओं में रोने वाले होते लोग क्या कहते हैं उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सब्र रखो कि अल्लाह पाक जानता है तुम किस कर्ब से गुजर रहे हो। वो जानता है तुम्हारी हर दबी सरगोशी को, वो तुम्हारे हाल से गाफिल नहीं है। यह मुश्किल वक्त तुम्हें अल्लाह पाक से मिलाने आई है। बताओ, जब तुम अकेले रह गए थे, सबने हाथ छोड़ दिया था, तो उस वक्त किसने हाथ थामा? कौन सुकून बनकर दिल में उतरा? किसने जीने का हौसला दिया? हाँ, वही अल्लाह पाक, सिर्फ वही तो है। किसी भी चीज के लिए अल्लाह पाक से बर्दाश्त नहीं, बल्कि हमेशा सब्र मांगा करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक हमें कोई तकलीफ देता है तो वो कहता है कि तुमने मुझसे बर्दाश्त मांगी थी तो अब उसे बर्दाश्त करके दिखाओ। इसलिए अपने रब से बस सब्र मांगा करें, बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है।
नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साज मुबारक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह।